Welcome back to my study channel. Friends, our today's topic is elements of double entry bookkeeping. This is our 69th video as per the syllabus of JKSSB Panchayat's Accounts Assistant. As you know, friends, we are preparing videos as per the syllabus of JKSSB. So friends, without wasting time, let's start. Question number 1 is double entry system is a dash. Here A is reporting system, B is financial statement preparation system, C is recording system and D is debit and credit determining system. Here option D is the right answer, that is a debit and credit determining system. Double entry system is a debit and credit determining system. Next question is, the features of double entry system are: A is it has two parties, receiver and giver. B is total amounts of debit will be equal to total amount of credit. C is receiver is debit and giver is credit. Here, which one of the above is correct? First is A and B, second is B and C. So friends, here first is the right answer, that is A and B. A में क्या है? It has two parties, receiver and giver. B is total amount of debit will be equal to total amount of credit. So this is the right answer. Next question is, considering the following information, answer the questions given 3, 4 and 5. Friends, I want to tell you that this type of questions will surely come in your exam. So आपको ये इस बात का पता होना चाहिए कि आपको एक कोई छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसी के बेस पे यानी कि उसी को जो है रीड आउट करके आपने नीचे उसके 2 से 3 क्वेश्चन जो दिए होंगे उनके आंसर देने हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर में हमने लिया है, मिस्टर सुबीर रॉय कीप्स द परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एटसेट्रा फॉर हिज बिजनेस इंस्टीट्यूशन. बिसाइड्स दिस ही रिकॉर्ड्स द discounted entries in other way because he has clear concept about accounting. Then he prepares the financial statements for knowing about the financial position of the business continuously. Friends, here question is, in purchase book Mr. Subir Roy records. क्या record करते हैं purchase book में? Here answer is credit purchase. Here A is credit purchase, so this is the right answer. Next question is, Mr. Subir Roy records the discounted entries in. Mr. Subir Roy records the discounted entries in the A is cash book, B is sales receivable book, C is journal book and D is bill receivable book. Here answer is option A, that is cash book. Mr. Subir Roy records the discounted entries in the cash book. Next question is, by is opening entry needed for Mr. Subir. By is opening entry needed for Mr. Subir. Here A is to follow the accounting, B is to start the next accounting year, C is to justify the arithmetical. Here answer is to start the next accounting year. By is opening entry needed for Mr. Subir. Answer is to start the next accounting year. Next question is, generally what type of accounts is not kept in single entry system? Generally what type of accounts is not kept in single entry system? Here A is asset, B is income, C is expense. Which of the above is correct? इनमें से कौन सा correct है? Here A is A only, B is A and B only. Here answer is A and B only. So option B is the right answer. बी में क्या है, ए एंड बी में क्या है, एसेट और इनकम. यहाँ पे फिर देखते हैं कि जनरली व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स इज नॉट केप्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम. सो एसेट एंड इनकम टाइप ऑफ अकाउंट्स इज नॉट केप्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज करेक्ट? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग टोटल लाइबिलिटीज. क्लोजिंग जो कैपिटल होती है वो किसके बराबर होती है? ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग टोटल लाइबिलिटीज. बी इज ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस
opening total liabilities. Here answer is option A, that is closing opening capital is equal to, here answer is B, that is opening capital is equal to opening total assets minus opening total liabilities. So which one is correct? Here B is correct, that is opening capital is equal to opening total assets minus opening total liabilities. Next question is, which one is used a rough working for financial statement? Which one is used a rough working for financial statement? Here A is trial business, B is worksheet, C is adjusting entries, and D is closing entries. Here B is the right answer, that is worksheet. Which one is used a rough working for financial statement? Here worksheet is used for a rough working for financial statement, so worksheet is the right answer. Next question is, which sequence is correct? Here trial balance, then adjusting entries, then worksheet, then financial statement. So this is the right answer. ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है. पहले होता है ट्रायल बैलेंस, फिर होता है एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर आती है वर्कशीट और फिर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ओपनिंग कैपिटल इज TK 70,000 and closing capital is TK 90,000, but is the amount of profit or loss? फ्रेंड्स आपको पता ही है कि अगर ओपनिंग जो है मैंने 5,000 रुपये लगाया है और उसके बाद में जो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास है वो अगर 9,000 रुपीज़ है, तो इट मीन्स आई हैव गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीज़. सो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो यहाँ पे कितना 70 उसने लगाया है, तो यहाँ पे जो है 90 उसके पास है. सो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. 20,000 जो है उसको 20 TK इज द प्रॉफिट. ठीक है, TK जो है मेरे विचार से तो जो टका वो बोलते हैं टका, ये बांग्लादेश में. ठीक है, उसके बाद में अगर आप आसाम में चले जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ लोग जो है टका इस्तेमाल करते हैं, टका. ठीक है, जो जैसे हम रुपी बोलते हैं तो वो वहाँ पे टका बोलते हैं. तो यहाँ पे जो है 70,000 जो है उसने लगाया, उसके बाद में 90 उसके पास है. इट मीन्स प्रॉफिट TK कितना है यहाँ पे 20,000 रुपीज. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? हेयर ए इज परचेज इंक्रीजेज डेबिट. सो फ्रेंड्स, जो मैंने ऊपर आपको बताया है यहाँ पे जो TK है, जैसे हम रुपीज़ का सिंबल डालते हैं तो इसी प्रकार से बांग्लादेश में जो टका होता है ना, तो टका हम रुपी बोलते हैं, वो टका बोलते हैं. तो टका का जो सिंबल है वो होता है TK. ठीक है, यहाँ पे जो है TK मेंशन किया है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ टका. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? हेयर ए इज परचेज इंक्रीजेज डेबिट, income increases credit A. B is expense decreases debit, income decreases credit. C is a receiver is debit and giver is debit. D is a receiver is credit and giver is debit. Friends, here answer is option C, that is receiver is debit and giver is debit. Receiver is debit and giver is, यहाँ पे जो इसने पूछा हुआ है यहाँ पे कि which one is the principle of double entry system? Here receiver is debit and giver is debit is the. So यहाँ पे जो बोला गया है which one is the principle of double entry system? Here answer is option C, that is receiver is debit and giver is credit. ठीक है, receiver is debit and giver is credit. Once again the answer is option C, that is receiver is debit and giver is credit. So this is the right answer. Next question is, nowadays base of accounting is, nowadays base of accounting is, A is double entry system, B is cost accounting system, C is single entry system. Which one is correct of the following? Here A is 1, B is 2, C is 3 and D is 1 and 3. Friends, here the answer is C, that is 3.
यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउअडेज बेस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउअडेज बेस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट। अभी यहाँ पे फिर एक बार जो हमने पहले क्वेश्चन किया है फ्रेंड्स, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसी को जो है रीड आउट करना है हमने, और 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑन 1 जून 2012 मिस्टर इशमान started a fast food shop with stock of goods of TK 55,000 at Bailey Road in Dhaka. The following transactions occurred in his business in that month. तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई कोई व्यक्ति है, उसने जो है 1 जून 2012 को फास्ट फूड जो है उसकी दुकान खोली विद टका यानी कि ₹55,000 एट बेली रोड इन ढाका, बांग्लादेश में। सो द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस ऑकर्ड इन हिज बिजनेस इन दैट मंथ। उस मंथ में जो है उसकी बिजनेस में ये जो है ट्रांजैक्शंस हुई कौन कौन से। जून 5 को सोल्ड गुड्स टू शाहिद 5,000 रुपीज़ यानी कि टका 5,000। जून 12 को गुड्स परचेज्ड टका 12,000। जून 20 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टका 35,000 यानी कि उधार दे दिया उसने 35,000 रुपये का। जून 23 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम रफ़ी टका 5,400, उसके बाद में 5,400। देन जून 28 को गुड्स रिटर्न्ड टू सेलर टका 3,400। सो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मिस्टर इशमान। हेयर ए इज सोल्ड गुड इन कैश। ठीक है, जो कैश में जो गई है वो तो कैश बुक में लिखी जाएगी। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न टू सेलर, और यहाँ पे है स्टार्टेड विद स्टॉक ऑफ गुड्स। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्टार्टेड विद स्टॉक ऑफ गुड्स। जिससे उसने शुरू किया है स्टॉक से, वो जो है कहाँ पे रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मिस्टर इस्माम। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सा लिखा जाएगा, जर्नल में वो चीज लिखी जाएगी जो उसके पास स्टार्टिंग में थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बुक द ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड ऑन 5 and 20 विल बी रिकॉर्डेड। 5 जून और 20 जून को जो चीजें जो है यानी कि ट्रांजैक्शन है वो किस में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या क्या है देखते हैं एक बार। 20 जून और 5 जून को, 5 जून को सोल्ड गुड्स ऑफ शाहिद, ठीक है, कितना टका 5,000 बेचा है उसने। उसके बाद में 20 को जो है फिर सोल्ड किया उसने 35,000। तो ये किस में लिखा जाएगा, सेल्स जर्नल में। सो इन विच बुक द ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड ऑन 5 जून एंड 20 जून विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे आंसर है सेल्स जर्नल में। ठीक है, सेल्स जर्नल में ये जो एंट्रीज है ट्रांजैक्शन है इनको लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर इशमाम बिल प्रिपेयर ऑन रिटर्निंग गुड्स। Here A is debit note, B is credit note, C is debit voucher and D is credit voucher. Here answer is debit voucher. Mr. Ishmam bill prepare on returning goods. देखो फ्रेंड्स, जो चीजें जो है कोई वापस करके गया है दुकान के ऊपर, वो कहाँ पे लिखी जाएंगी, ना तो वो कैश बुक के ऊपर लिखी जाएंगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे नोट होंगी, डेबिट बुक के ऊपर। ठीक है, सो हेयर आंसर इज डेबिट बुक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उसके बारे में एक बार फिर बता देता हूँ फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हमसे टाइपिंग एरर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में उसको क्लैरिफिकेशन करना हमारा फर्ज बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हेयर ए इज परचेज इंक्रीजेज डेबिट, देन इनकम डिक्रीजेज क्रेडिट। बी इज expense decreases debit, then income decreases credit. Here option C is the right answer, that is receiver is debit and giver is credit. ठीक है, जो देने वाला है वो क्या है, वो क्रेडिट है, डेबिट है, जो वो क्रेडिट है, और जो रिसीवर है वो क्या है, डेबिट है।
ठीक है, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो है मैंने रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज, यहाँ पे जो है आएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्रेडिट। सो दिस इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आपका सब्सक्रिप्शन ही है जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय।